ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਦੀਪ ਭਾਈ ਦਾ ਕੱਦ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਫੇਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਲ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਏਕੜ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਬੰਬੇ ਰਹੇ, ਪੂਨਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਨੀ ਫਿਲਮਸ, ਸੋਨੀ ਫਿਲਮਸ, ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ, ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਬੰਸਾਲੀ, ਦਿਓਲ ਫੈਮਲੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ MP ਬਣ ਗਏ, MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ MP ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ MP ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
उन्होंने दसिया गया कित्थे पुल बनाने, कित्थे सड़क बनानी, जो भी सीगा जिहड़ा नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर लैवल के उत्ते जिहड़े काम सीगे वो होने तो बाद गल आई कि अल्टीमेटली आपां की करना है कि अल्टीमेटली एक स्टेट, एक धर्म, एक बोली, एक पार्टी, ये सोच के उत्ते काम करना है। कहते इस दे लई की करना पएगा कि एक धर्म दे विच जाण दे लई एक शब्द असीं होर दीप भाई दे मूंहों बड़ा सुनते हुंदे सी, जिन्हों असैमिलेट करना और एलिमिनेट करना। असैमिलेट करना अपने अंदर ही मिक्स कर लेना। मेरे ख्याल आवाज आ रही सबनूं? असैमिलेट करना अपने अंदर मिला लेना, अपने नूं दूसरे नूं अपने अंदर मिला लेना। एलिमिनेट करना दूजे नूं खत्म कर देना। तो उन्होंने बोलिया गया कि एलिमिनेट नहीं करना, जो सिख धर्म हैगा इनू एलिमिनेट नहीं करना, इनू गोली नहीं मारनी, हौली 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 इन्हों अपने अंदर ही मिला लेना। एक बोली, एक धर्म, एक फलान, एक ढींग, ये चलते हुए ये सब करना है। तो दीप भाजी कहते मैं सनी देओल वाल वेखां। सनी देओल चुप। तो मीटिंग जो खत्म हुई, गड्डी दे विच भाजी ने, दीप भाजी ने सनी देओल नूं पुछया कि भाई आ अंदर की गल्लां करी जांदे। तो सनी देओल कहंदा यार आपां की कर सकते हैं। वो वाकई की कर सकदा। उदों वो लाइन, वो पहली बारी वो लाइन दीप भाजी ने सनी देओल नूं बोली सी कि भाई ये तो अपनी होंद का मसला है, ये तो साडी होंद मिटाना चाहते। सनी देओल कुछ नहीं बोलिया। दीप भाई उदों तो सनी देओल हरां दे नाल दूर होंदे चले गए। लेकिन तुहानू अगर पता चल भी जाए तुसी की करोगे? सड़क ते फड़ के लोगों नूं बोलोगे? कुछ नहीं कर सकते। तुहानू ये समझ आ गया कि सरकार दे पिछे जिहड़े एक डीप स्टेट है वो करना की चाहती, तुहानू पता तो चल गया, लेकिन तुसी करो कि ये दीप भाई के अंदर ये चीज चलती पई है। और इन्हें विच लॉकडाउन चलता, फिर 328 गुरु साहब के स्वरूपों का केस आंदा। दीप भाजी उत्थे बोलना शुरू करते, बेअदबियां दे केसेस वध जाते हैं। बेअदबियां क्यों होंदियां? गुरु साहब दियां। तुसीं याद करके वेख लो, जिदन पहली बारी तुसीं सुनिया सीगा किते कि गुरु साहब दे अंग पाड़ के गलियां दे विच सुट दिते, तुसीं हैरान हो गए सी। मैं गुरु साहब की हजूरी में हाथ जोड़ के माफ़ी मंगता होया इन्नी गल बोलदा, ये सच है। लेकिन कि अज अक्सर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई असी खबर सुनते हैं कि फलानी जगह गुरु साहब की बेअदबी हुई। ये वड्डी कोई खबर नहीं होंदी। वो यही करना चाहते थे कि इन्ना ही ज़्यादा कर दो कि ये कोई आम ही जी गल हो जाए कि सिखां नूं लगता है कि जीवित गुरु ने, उस गुरु की अहमियत हटा दो। जदों 328 स्वरूप चोरी हुए उदों दीप भाजी नूं फिर वो याद आया कि ये साडी होंद दा मसला है, उही काम चलदा पिया। उत्थे पहली बारी भाजी बोले, उदों लोकां ने दीप सिद्धू वेखना शुरू किया। उस दे बाद जदों मोर्चा लग्या, मोर्चे विच सारे जने लगे सी MSP MSP MSP, लेकिन वो बंदा जानदा सीगा यार MSP की तो गल ही छड्डो, ओदी एक गल सच साबित हुई। उदों उन्हें बोलना शुरू किया, शंभू मोर्चे तो पहली बारी बोलिया हो कि साडी होंद दा मसला है। लड़ाई अज भी उही है। जदों जदों असीं दीप सिद्धू भाजी नूं होर सुनांगे, होर ज़्यादा उन्होंने इंटरव्यूज़, उन्होंने स्पीचां, उन्होंने लाइव अं सुनांगे, दीप भाई का कद अजे बहुत वड्डा होना। जिन्ना वड्डा हैगा इस तो किते उत्ते उहदा कद असल च है।
शायद ये गल तुहानूं पता ही नहीं सी। असीं उहनूं गद्दार कहंदे रहे, असीं उहनूं प्लांटेड बंदा कहंदे रहे, लेकिन उहदे अंदर की चल रहा सी उहने उह नेड़ियों वेख लिया है। असीं मोदी दे नाल दी फोटो लैके उत्ते सवाल करते रहे। जिद्दण वारिस पंजाब दे जथेबंदी लॉन्च की सीगी उदम स्टेज के उत्तों मैं वेख रहा सी प्रैस, उदों इस चीज़ नूं बहुत टाइम हो चुकिया सी। उसके बावजूद तुहाडी जी मोदी दे नाल फोटो है, बाई ने डिटेल च उसका जवाब दिता बिना मथे त्योड़ी पाई, वो यूट्यूब पर पई हुई है सारी। फिर 3-4 सवाल आए, फिर एक जना सवाल करता तुहाडी जी मोदी दे नाल फोटो है, असीं जीन नहीं दिता उन्होंने। मेरे को समा, मैं बाबा जी थोड़ा बोल सकना। सिमरनजीत सिंह मान साहब इलैक्शन लड़ रहे हैं। एक पत्रकार कहता कि आप पार्टी जित गई तो मान साहब को एक होर मौका मिल गया। किन्ने शर्म की गल है, ये मान साहब को मौका नहीं मिल गया, कौम को मौका मिल गया कि 10 की साडा जमीर जिउंदा। वो किहड़े सपने दे लई एक बंदा इन्ने सालों तो लड़ रहा है, इन्ने तशद्दद सहन तो बाद भी लड़ रहा है। वो जिहड़ा सपना है देश पंजाब दा, सिख राज दा, मैं अक्सर आजकल मैं इंग्लैंड तो होके आया तो मैं जिन्नी जगह भी बोल रहा तो पुछदा होना, महाराजा रणजीत सिंह साडे आखिरी सिख राज दे महाराजा सीगे। वैसे 2-4 होर बने सीगे उन्हां दे पुत्तर। अगर मैं पूछा कि महाराजा रणजीत सिंह दे उस बेटे का की ना ही जो इंग्लैंड चले गए सी, बाद चों वापस आए, तो अगों दी जवाब मिलता जी दलीप सिंह। शायद इत्थे भी मैं पूछा तो यही जवाब मिलेगा, दलीप सिंह। मैं जो इंग्लैंड गया तो उत्थे साडे एक भाई साहब ने, अवतार खंडा भाजी, वो मैनू उस किले च लैके गए जो महाराजा दलीप सिंह जी का सीगा, उस समाध ते लैके गए। वो जिथे जिथे गए उथे हर जगह उन्होंने बोलिया कि ये महाराजा साहब का किला है, ये महाराजा साहब की समाध है, ये महाराजा साहब इत्थे आके आ करते थे, ये महाराजा साहब इत्थे इन्हां दा बुत लग्या, इत्थे महाराजा साहब ने एंड विच उन्हां दा शरीर इत्थे आया सी। अहीं साडे उत्ते इस तरह नाल काम किया जाता है कि जिहड़ियां चीज़ां साडा इतिहास, साडा सभ्याचार, जिन्हां चीज़ां सानूं प्राउड होना चाहिए, उन्हां तो सानूं हौली 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 दूर कर दिता जाता। महाराजा दलीप सिंह साडे आखिरी महाराजा सीगे, सिख राज दे आखिरी महाराजा, लेकिन साडे महाराजा साहब नूं असीं दलीप सिंह कह दिंदे कि महाराजा साहब के बेटे का नाम दलीप सिंह। मैं भी दलीप सिंह ही कहता सी। मैं बहुत पहला एक किताब पढ़ी सी, उसका नाम सीगा दलीप। वो किताब क्यों लिखी गई? क्योंकि साडे दिमाग के अंदर वो महाराजा हटे। उस पूरी किताब जो थे दलीप सिंह दलीप सिंह दलीप सिंह ही लिखा होया। महाराजा दलीप सिंह, मैं शॉर्ट वे दस दिना कि जो छोटे होंदे सीगे उन्होंने उधर ले गए कानपुर, कानपुर तो बाद इंग्लैंड गए, उत्थे उन्होंने अयाशियां च पा दिता गया, शराबां च पा दिता गया ताकि ये अपना पिछोकड़ भुल ही जान। उन्होंने केस कतल कर दिते, उन्होंने ईसाई बना दिता, और इसी तरह नाल जिंदगी जींदे रहे। लेकिन जब वड्डे हुए तो पता लग्या मां भी हैगी है, महाराणी जिंदा,
वो नेपाल च किते हैगे। पुत ने सरकार नूं बोलिया, ब्रिटिश सरकार नूं बोलिया कि मैनू मां नाल मिलण दा इजाजत दी जाए। इजाजत लैनी पैंदी सी। हालांकि उत्थे उसका 22,000 एकड़ का अपना महल सीगा, शाही रुतबा सीगा। राणी अपना पुत्र मनती सी। उन्होंने ब्लैक प्रिंस बोलिया जाता सीगा। दुनिया दे विच दो ही गोरिया ने दुनिया भर च राज किया, लेकिन दो ब्लैक प्रिंस होए जिन्होंने राणी अपने नाल लै गई सी। एक साडे महाराजा साहब और एक कोई होर कंट्री दे ने। इत्थे तुसीं बहुत सारे सुनिया होएगा, मराठा राज और फलाना राज, राजपूताना। किसी दे बच्चा मां राणी अपने नाल नहीं लै गई, सिर्फ सिख राज का फरजंद अपने नाल लै गई, जिन्हों ब्लैक प्रिंस बोलते। उतों परमिशन लैके फिर वो इंडिया आए, महाराणी जिंदा नूं मिले। महाराणी जिंदा जो कि अन्नी हो चुकी सी, हत्थां नाल टोह के वेख्या ते फेस ते हथ फेरते फेरते जो सिर ते हथ फेरिया, उदों महाराणी ने बोलिया कि जिदन तेरा प्यो मरिया सी, जिदन साडा राज गया सी, उदन नहीं बल्कि अज सिख राज का सूरज डुबिया। महाराजा नूं इस गल का इन्ना असर होया कि यार बाल इन्नी अहमियत रखते। फिर उसने जाके पुछ गिछ की, उन्होंने पता लग्या सिख राज का, उन्होंने पता लग्या महाराजा रणजीत सिंह का राज किहो जिहा सीगा। हरी सिंह नलवा कौन सी? दोबारा शॉर्ट में दसदा, दोबारा सिख सजे, सिख धर्म के अंदर आ गए और अपनी सारी जिंदगी सिख राज के लिए जदोजहद करते रहे। इत्थे दियां बहुत सारिया सिख जथेबंदियां उन्हों का साथ दिंदियां सी। फिर उन्होंने मास्को, तुर्कमेनिस्तान, होर भी कई कंट्रियां नूं इकट्ठे करके हिंदुस्तान ते अफगान दे वल्लों दी आना सी। लेकिन एंड विच जो इत्थे जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा सीगा सिख जथेबंदियां तो, जिहड़ा बंदा कर रहा सी उसका नाम कोई मुखर्जी सीगा, किशनकांत मुखर्जी, अगर मैं नाम गलत लै रहा तो किशनकांत मुखर्जी या कमलकांत मुखर्जी। उसने पैसा इकट्ठा किया और एंड विच वो दौड़ गया। महाराजा साहब मास्को च वेट करते रह गए। उन्होंने इंग्लैंड तो उन्होंने सारे जो उन्होंने सहूलतां मिलियां हुई सी उस तो उन्होंने वांझा कर दिता गया। इत्थों इत्थे कभी पैर नहीं रख सके, कभी पंजाब च नहीं एंटर हो सके और अपना आखिरी समा वो पेरिस के एक होटल दे विच उन्होंने गुजारिया। उन्होंने होर कुछ ना होए, इंग्लैंड दे विच 22,000 एकड़ का महल, शाही शानो शौकत, राणी दे पुत्र का रुतबा, वो सारा छड्ड के वो बंदा देश पंजाब का सुपना लैके लड़ता रहा। और एंड विच उसनूं जदों पेरिस के होटल दे विच उसने दम तोड़िया तो उसनूं अफसोस इस गल का सीगा कि वो गुरु साहब की गल पूरी नहीं कर पाया। वो कभी पंजाब एंटर नहीं हो पाया। उन्होंने अंतिम इच्छा सी कि उन्होंने संस्कार पंजाब किया जाए, लेकिन उन्होंने जाण तो बाद गोरा उन्होंने इंग्लैंड लै गया। इंग्लैंड जाके उन्होंने समाध बना दी। मैं जो उस समाध से बैठा होया सीगा ते सिमरनजीत सिंह मान साहब उत्थे एक बारी आए थे। मैं खंडा भाजी नूं बोलिया कि खंडा भाजी ये काम असीं कर लैने, असीं इन्नी सिक्योरिटी तो है नहीं, इकट्ठे होकर आ जाएंगे, पट लेने तो पंजाब लै जाएंगे और राजा साहब की असीं अंतिम इच्छा पूरी कर देने। खंडा भाजी कहते यार मैं ये गल मान साहब नूं कही सी एक बारी। मान साहब कहते कि ये गलती कदे ना करो, क्योंकि जब तक तुसीं इत्थे आंदे रहोगे तुहाडी चिणक जिहड़ी है ना वो वधदी रहेगी। और दूसरा महाराजा साहब का सुपना देश पंजाब च जाण दा सी।
ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। टाइम ज़्यादा हो गया, मैं कोई मेरे को गलती हुई होवे मैं माफ़ी चाहांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।